بس جیسے ہی صبح عاشور قریب آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان نے نماز فجر پڑھی۔ اتنی دیر میں فوجی یزید امام حسین علیہ السلام پہ نماز میں ہی حملہ کر دیا، اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی زہر شہید ہوتے ہیں، کبھی چھون شہید ہوتے ہیں، کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی امام حسین شہزادے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں تو کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم صغیر علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھتے ہیں۔ بس جب کرب و بلا میں نواسائے رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا، آپ خیمے میں آتے ہیں اور بی بی فضا سے کہتے ہیں، ماں فضا میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ امام حسین فرمانے لگے، اے بہن، یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں، میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لوٹیں گے۔ شاید میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے ان کا ضمیر جاگ جائے۔ تمام بیویوں سے الوداع کہتے کہتے امام سجاد کے خیمے آتے ہیں۔ امام سجاد بستر بیماری پہ، امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے آنکھیں کھولی، دیکھا امام حسین کے چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا ہے، نہ ساتھ میں علی اکبر ہے نہ غازی عباس۔ چیخ کے کہنے لگے، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد صبح سے لے کے اب تک سب جام شہادت پی چکے۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دو۔ امام حسین نے فرمایا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تجھے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ سجاد اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے رہے اور امام حسین میدان تک آ پہنچے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسائے رسول حسین ابن علی آ کے کہتے ہیں، اے لوگو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم آواز ہو کے کہتے ہیں، ہم تجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے۔ نہ بھولنا، خیبر و خندق، بدر و احد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس علی کا دشمن وہ مجھ محمد کا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ مجھ محمد کا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ آج اسی علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر بن سعد نے کہا، شمن نے کہا کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو۔ بس امام حسین علیہ السلام پہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جیسے ہی ذوالفقار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا لاکھوں فوجی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ کوہرام برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک نواسا۔ فوجی اشکیا جا کے دارالامانہ تک پہنچ گئے اور امام حسین فرماتے ہیں، آؤ ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک
प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो, जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन, तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फिकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर, ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। बस फौज ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ तीर, नेज़े, भाले फेंको। तारीख ने लिखा, फौजी यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई पर्ची मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था, वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासा रसूल घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे, वो इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ करने लगा ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको, कोई तीर न चलाए। अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों पे सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौजी यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख ने लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा, लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया। तो कुछ लोग इमाम हुसैन के पाक जिस्म की तौहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट ली और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के अलग कर दो और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, इनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से कोई कहता है अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से हुर की लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गर्म जमीन पे सिर्फ फातिमा ज़हरा का बेटा पड़ा रहा। किसी जालिम ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया कि इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला, इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े हो गए। फौजे यजीद इमाम हुसैन की लाश पामाल कर रही है और वहाँ शिमर और उमर बिन साद खुश हो रहे हैं। इतने में अंधेरा छा गया और यूं गरीबों की शाम बिछ गई। बेपर्दा बीबियां जमीन करबला पे बैठ के शहीदों का मातम कर रही हैं। इमाम सज्जाद ने देखा कि जमीन रो रही है, आसमान तड़प रहा है, कहीं कयामत ना आ जाए। अपने सर को सजदे में रखा और पूरी रात अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते रहे। बस
शाम गरीबा का ढलना था। 11 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। शिमिर रसूल अल्लाह की बेटियों को कैद करता है और कैदी बना के कूफा और शाम की तरफ चला जाता है। इमाम हुसैन और उनके साथियों की लाश जमीन करबला में बेगोरो कफन पड़ी रही। इमाम सज्जाद खून के आंसू रोते रहे। तारीख ने लिखा 3 दिन रसूल अल्लाह का नवासा बेगोरो कफन जमीन करबला में बिखरा हुआ था। 13 मुहर्रम 61 हिजरी। जब आसपास के लोगों ने देखा कि फौज का पहरा कम हुआ है तो वो नहर फरात से पानी भरने के लिए बाहर आए। बनी असद की औरतें देखती हैं कि जमीन करबला पे लाश बिखरे हुए हैं। वो चीख के रोती हैं और अपने अपने मर्दों के पास जाके कहती हैं, ऐ लोगो, ये रसूल अल्लाह का खानदान था, शायद यजीद की फौज ने इनको कत्ल कर दिया। आओ इन गरीबों की लाशों को तदफीन करते हैं। उनके मर्दों ने कहा, क्या कह रही हो, यजीद ने मारा है, ऐसा ना हो कि इनको तदफीन करें और कल यजीद हमें भी मार दे। वो औरतें रो के कहती हैं, ऐ बदबख्त लोगो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मैं अजर रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मोहब्बत करना। ऐ लोगो, अगर तुम नहीं जाते तो हम औरतें जाती हैं और हम रसूल अल्लाह के खानदान को तदफीन करती हैं। कुछ के ज़मीर जागे और कुछ मर्द कुछ औरतें जमीन करबला पे पहुंची। देखा कि किसी के जिस्म पे सर नहीं, लाश जमीन करबला में बिखरी हुई है। उन्होंने सोचा कि सबकी पहचान करना नामुमकिन है। ऐसा करते हैं, एक बड़ा खड्डा खोदते हैं और तमाम शहीदों को उस खड्डे में तदफीन कर देते हैं। और यूं वो खड्डा खोद ही रहे थे कि इतनी देर में मोजज़े से एक नूरानी चेहरे वाला कमर झुकी हुई आ पहुंचा। लोगों ने सोचा शायद कोई सिपाही है। वो कहने लगा, ऐ लोगो, न डरो, मैं इसी गरीब का बेटा सज्जाद हूँ। और फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह की अबा को उन लोगों के हाथों में थमाते हैं और जमीन करबला से इमाम हुसैन का जिस्म चुनना शुरू करते हैं। कहीं से इमाम हुसैन की उंगलियां मिलती है, कहीं से इमाम हुसैन के कंधों का गोश्त मिलता है, कहीं से इमाम हुसैन की पसलियां मिलती है। उस अबा में इमाम हुसैन के जिस्म को जमा करके एक जगह खड्डा खोदते हैं तो पहले से ही एक कब्र बनी होती है। वहाँ नवासा रसूल को तदफीन किया जाता है और साथ में अली अकबर और अली असगर को तदफीन किया जाता है। और उस बड़े खड्डे में तमाम शहीदों को तदफीन किया जाता है, जिसको आज भी जमाना गंजे शहीदा कहता है। इतने में कोई कहता है, एक बूढ़े की लाश रह गई है। इमाम सज्जाद रो के कहते हैं, ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है। अल्लाह की मर्जी ये है कि हबीब की कब्र हुसैन के दरवाजे पे बने ताकि हर आने वाला हबीब की ज़ियारत करके इमाम हुसैन की ज़ियारत करे। अब सब जा ही रहे थे कि इतनी देर में इमाम सज्जाद कहते हैं, रुको, आओ नहर की तरफ। जैसे ही नहर की तरफ बढ़े, रास्ते में एक बाजू मिला। इमाम सज्जाद ने उस बाजू को सीने से लगाया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बाजू मिला, उस बाजू को भी सीने से लगाया। बस जैसे ही थोड़ा सा आगे चले तो जनाब अब्बास अलमदार का जिस्म नजर आता है और वहीं जहाँ हजरत अब्बास शहीद हुए वहाँ उनकी कब्र बना देते हैं। तारीख ने लिखा, करबला के वाक़ये के बाद यजीद ने और आने वाले बादशाहों ने ये चाहा कि हुसैन की कब्रों के निशान भी खत्म कर दें, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। लोगों ने चाहा कि नहर फरात का रुख इमाम हुसैन की कब्र की तरफ कर दें, लेकिन तारीख गवाह है नहर फरात का पानी इमाम हुसैन की कब्र के करीब जा न सका। आज भी अल्लाह ने अपनी इस निशानी हुसैन इब्ने अली की कब्र को हर खास अवाम के लिए तौहीद की निशानी बना के रखा है। लाखों लोग करबला आते हैं और नवासा रसूल की कब्र मुबारक की ज़ियारत करके इस्लाम जिंदाबाद जुल्म मुर्दाबाद कह के इमाम हुसैन के रोजे की तहलीस चूमते हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम हुसैन इब्ने अली पर। इमाम हुसैन इब्ने अली पर। इमाम हुसैन इब्ने अली पर।